Respected physical education teacher and dear students, myself Prankar Mishra, PGT physical education teacher, express thanks to give me the valuable session in my previous video. Today I will start Unit 2, Children and Women in Sports. The overview of my session is express the guideline of World Health Organization for different age groups and the common postural deformities where the knock knees, flat foot, bow legs, lordosis, kyphosis, scoliosis. We'll discuss one by one. Now the first part is exercise guideline of WHO or World Health Organization for different age groups. Under the 5-year age groups, now newborn, infant age, toddler age. After that, children and the youth, that is 5 to 17 years. Adult 18 to 64 years. Older age groups, that is 65 and above. We'll discuss one by one in related to physical activities. Now recommendation for the children under the 5-year of age groups. Now the first age group is less than 1 year. Under this, the sedentary behaviors, physical activities and sleep. The sanitation environments of the under the less than 1 year is not more than 1 hour. They can do that physical type of activities. We can encourage the different type of reading or storytelling type of activities, and there is a no screen time, means there is a no watching from TV and recommendation of mobile phones. In the physical activities, we can do that minimum, or it is minimum 30 minutes duration of activities. What type of activities? We can do that prone position में उस बच्चे को लेटा देना है इन टमी बेसिस पे, जैसे कि उल्टा लेटा देते हैं, with using that 7 feet mat length of the mat and the 4 feet width of the mat. The sleep area is sleeping of 0 to 3 months is 14 to 17 years minimum, and 4 to 11 month age group 12 to 16 hours. Now we can recommendation of 1 to 2 years. Not same, it is approximately, it is similar. It is not resting that 1 hours. हमें कोई भी activities इसको ज़्यादा restrain नहीं करना है 1 hours में. Screen timings नहीं होगा यहाँ पे. Sanitations और minimum screen areas जो time होगा वो 1 hour से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Encourage by chance, it may be sometime the parents can be read small stories, or sometime reading, sometime singing a song to encourage them childs. Now here the physical activity should be increased minimum, or it is called 180 minutes होना चाहिए. Vigorous type of activities हमें नहीं कराना, because the muscles can be developed. For example, that is crawling होगा, pushing and pulling, वो अपने आप से कर सकते हैं, और sometime parents भी उनकी help out कर सकते हैं. यहाँ पर sleep hours not more than 11 to 14 hours होना चाहिए, because of good quality of sleeps में. Now next is recommendation of the child under the age of 5 years. Now first 3 to 4 years में यहाँ पर more than same restrain नहीं होना चाहिए. हमें ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कराना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम 1 hour से ज़्यादा हो. ना यहाँ पर सेंडेशंस पॉइंट्स यानी जो इजी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है वो भी 1 hour से ज़्यादा नहीं होगी. एनकरेज स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ स्मॉल स्टोरीज हम बता सकते हैं जहाँ पर बच्चों को सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है. स्मॉल रीडिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं. नाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर 180 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मिनिमम हमें 60 मिनट्स हम करा सकते हैं. कोई भी मॉडरेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉल्स हमें कराना से थ्रोइंग कराना, या प्लास्टिक के बैट से हमें एक्टिविटीज़ कराना, जहाँ पर स्टूडेंट्स को या किसी भी चाइल्ड को कोई भी एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आता हो या एनकरेज मिलता हो. यहाँ पर भी स्लिप एरियाज 10 to 13 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एज अ गुड स्लिप में कोई भी एक चाइल्ड लेता है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंड यूथ में, जहाँ पर एज होती है 5 to 17 ईयर्स. यहाँ पर इंटेंसिटी मीन्स कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन सी रेट में वो वर्क कर रहा है, एंड यहाँ पर हम मॉडरेशन टू वीगरस जा सकते हैं. टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नॉट मोर देन 60 मिनट्स होगा. फ्रीक्वेंसी मीन्स टोटल वो कितने लेवल में वो वर्क कर रहा है. यहाँ पर हम 2 सेशन में 30 मिनट्स की भी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, या तो हम 1 घंटा उनको पार्टिसिपेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हम करा सकते हैं, या नेचर ऑफ चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. यहाँ पर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ होना चाहिए, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे कि वो खुद से जंपिंग करेगा, रनिंग करेंगे, थ्रोइंग करेंगे, पुशिंग करेंगे, टर्निंग हेड, ट्विस्टिंग्स हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. विथ इक्विपमेंट्स कर सकते हैं, विदाउट इक्विपमेंट्स भी कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर मसल डेवलपमेंट्स, ग्रोइंग डेवलपमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होना एक पर्टिकुलर स्टेज में होता है. दैट देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स होते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स जनरेट होंगे. फॉर एग्जांपल मसल्स हो गया, बोन्स हो गया, जॉइंट्स होंगे, टेंडन्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे, वो डेवलप होना चालू होते हैं.
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से इम्पैक्ट होते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जनरेट करना जहाँ पर हार्ट मसल्स या लंग मसल्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेसिकली डेवलप होते हैं, मूवमेंट जनरेशंस होता है, सेंसेस डेवलप होते हैं, मोटर लर्निंग प्रोसेस डेवलप होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट्स या हेल्दी बॉडी कंपोजिशंस यानी वेट और हाइट का कंपैरिजन्स होते हैं ना। साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स भी आता है, कंट्रोल ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन यहाँ पर मैनेज होना है, स्ट्रेस लेवल भी मैनेजेबल होना है। सोशल एस्पेक्ट्स बेसिकली डेवलप होता है क्योंकि चाइल्ड्स वहाँ पर स्कूल्स में जाना चालू करता है, इंटरैक्शंस डेवलप होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज समटाइम डेवलप होते हैं, एंड हेल्दी बिहेवियर्स भी डेवलप होता है। जैसे कि हमें अवॉइड करना है टोबैको या अल्कोहल या ड्रग्स को में लेने में कोई चाइल्ड्स एनकरेज तो नहीं कर रहा है, उनके बारे में उनको बताना है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में जनरेट करना है, प्लेइंग देयर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बेसिकली 60 मिनट्स या मिनिमम 30 मिनट्स उनको कराना है। फिजिकल एजुकेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, शुड बी प्लान्ड एक्टिविटीज़ होना चाहिए, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो स्कूल में हो, और इट मे बी एनी टाइप ऑफ कम्युनिटी बिहेवियर्स हो जहाँ पर वो जाके डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सके। Now next is adulthood activities, that is the age of 18 to 64 years. Intensity basically moderate to vigorous हो सकती है। Type of activities यहाँ पर basically different type of strength और aerobic form of activities होंगे। यहाँ पर aerobic form of activities nearly about 150 मिनट से 300 मिनट्स तक होना चाहिए। मिनिमम टू 70 to 50 मिनट्स पर वीक्स में vigorous activities भी वो कर सकते हैं। वन एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ को भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ योगा एक्टिविटीज़ हो गया, वॉकिंग हो गया, नॉर्मल जॉगिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया, जहाँ पर मसल स्ट्रेंथिंग बेसिकली जनरेट होना चालू होता है। मसल्स की एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग्स करा सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दिस? लोअर चांसेस है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटेलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर्स हो गया, हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, टाइप 2 डिसीजेस हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को भी इफेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स को भी कम करते हैं, वर्टिबल कॉलम फ्रैक्चर्स को भी होने से कम किया जा सकता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को या कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को एनहेंस करते हैं। न द चांसेस यहाँ भी है कि लोअर डाउन करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को, एंड डिप्रेशन यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी कम किया जा सकता है to the participation of different activities. Now what type of activities you can generate? The physical activities, walking है, jogging है, swimming है, weight training है, aerobic form of activities है, dancing है, योगा है, occupational work या household work को भी हम करते हैं, जैसे कि कार वॉश हो गया, गार्डनिंग्स हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, रिक्रिएशन है, जो कि एक स्कूल्स या कम्युनिटी या डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी वॉकिंग है, साइकिलिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है, एंड शुड बी प्लान्ड होना चाहिए जहाँ पर फैमिली और कम्युनिटीज़ के साथ हम वर्क कर सकें। Now next is older type of adult type of activities, यहाँ पर एज 65 ईयर्स या अबव होती है। ना द चांसेस है कि हम हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज को हम होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इनहेंस नहीं करते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क मॉडरेट टू विगरस होती है। टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को बेसिकली जनरेट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ या एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि बैलेंसिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज को जनरेट करते हैं। एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर वॉकिंग हो गया, नॉर्मल जॉगिंग हो गया, या साइकिलिंग भी हो सकती है। एरोबिक एक्सरसाइज जो कि 150 मिनट्स से लेके 300 मिनट्स तक भी होती है, और समथिंग टू मिनिमम यहाँ पर 75 to 150 मिनट्स भी हम कर सकते हैं। पर वीक हमें एक्सरसाइज या विग्रेस एक्सरसाइज को इन्हेंस करना है, यानी इंटेंसिटी को धीरे धीरे स्लो डाउन्स में हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज से बचना है ना। मसल स्ट्रेंथिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यानी मेजर मसल्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को जनरेट करें, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पर एजाइन प्रोसेस में होती है। एजाइन प्रोसेस में होने पे यहाँ पर मसल्स का डेवलपमेंट यानी बोन्स का डेवलपमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं ना। बैलेंसिंग यानी कोऑर्डिनेशन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मिनिमम वीक में 3 बार हम कर सकते हैं ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स? हम लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज हम बचेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेस ऑफ मोर्टेलिटी से बचेंगे, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिसीज होती हैं, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक वॉल्यूम्स हो गया, टाइप 2 डिसीज हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर से हम बच सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकते हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिबल कॉलम फ्रैक्चर से हम बच सकते हैं। इसलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए। बेसिकली लोअर डाउन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हमें जनरेट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ को एनहेंस करना है। मैंने पहले भी बोला है कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग, एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़। बेसिकली ऑक्यूपेशनल वर्क में हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। फॉर एग्जांपल कार वॉश कर सकते हैं, गार्डनिंग्स कर सकते हैं,
डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग, साइकिलिंग को भी हम जनरेट कर सकते हैं। प्लान टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करना है, मे बी फैमिली के साथ, और इट मे बी द कम्युनिटी प्रोग्राम्स के साथ भी हम एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। Now next is common postural deformities. There are these 6 different common postural deformities are there. Now the first is spinal deformities are there. Under this, lordosis, kyphosis, scoliosis are there. We'll discuss one by one. Now the after is common postural deformities of leg. Now bowlegs, flatfoots and knock knees are there. Now the total deformities in our body is total is 6. We'll discuss one by one. Now first is kyphosis. Kyphosis basically जो होता है सर्वाइकल बोन्स या वर्टिबल कॉलम्स में होता है. इट इज कॉल्ड एज हॉलो बैक्स है. काइफोसिस ऑल्सो नोन एज हंचबैक बिकॉज वर्टिबल कॉलम्स में एक राउंड टाइप जनरेट होता है. बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इट इज जस्ट लाइक अ बैंड बो, यानी बो स्ट्रक्चर्स में दिखता है, आर्च फॉर्म में डेवलप होता है, अपर बैक में बेसिकली जनरेट होता है और यहाँ पर इंक्रीज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिबल कॉलम्स में बो शेप में दिखने के लिए. Now kyphosis hollow backs बोला जाता है. We will discuss causes and corrective measures one by one. Now बहुत सारे causes हो सकते हैं, but the few causes are arthritis होता है, hereditary generation में होता है, बॉडी जब एजाइन प्रोसेस में होते हैं उस टाइम भी होने के चांसेस मैक्सिमम टेंडेंसी में रहते हैं. दो द ओल्डर वुमेन्स को भी बेसिकली जनरेट होता है. एज फैक्टर्स के कारण भी काइफोसिस होने के चांसेस रहते हैं. और ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर वे में बैलेंस राइट फुट नहीं दिया गया है तो अर्ली एज ग्रुप्स में भी हो सकता है. नाउ व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स? हमें बैक मसल्स को यानी सर्वाइकल बोन या वर्टिबल कॉलम में स्ट्रेंथनिंग देना है. ना हमें यहाँ पर फिजिकल थेरेपी जस्ट लाइक अ स्विमिंग एक्सरसाइज, जिम में जाके बॉल टाइप ऑफ एक्सरसाइज, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज को भी जनरेट करना है. योगासन, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन बेनिफिट होते हैं. और फ्लैट मतलब विदाउट यूजिंग दैट पिलोज या तो थिन पिलो आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर काइफोसिस की डिफॉर्मिटीज़ को हम कम कर सकते हैं. नॉन एक्सिस लॉर्डोसिस स्वाय बैक होता है, स्वाय बैक होता है. बेसिकली जनरेट इन लुम्बर बोन में होता है. इट इज़ ग्रीक वर्ड से लिया गया, यानी बैंड बैक में होता है. यहाँ पर नेक और अपर बैक या लोअर बैक जो होता है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट होता है, बट स्लाइटली काइफोटिक यानी अपर बैक और लॉरोटिक यानी नेक या लोअर बैक में होने के चांसेस मैक्सिमम होता है. ना द चांसेस इज सी और एस शेप या बेसिकली एस शेप में जनरेट होता है लॉर्डोसिस पोजीशन, और लोअर बैक यानी लुम्बर बॉक्स में जनरेट किया जाता है. नॉन एक्सिस लॉर्डोसिस स्वाय बैक होता है. विल डिस्कस कॉजेस एंड करेक्टिव मेजर्स आर देयर. लुम्बर बैक यानी लोअर बैक रीजन्स में स्पाइन बैक में होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्वाय बैक पोजिशंस. ना डिस्कम्फर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेजर बोन्स मसल्स के कारण, यानी बेसिकली लुम्बर बोन और लेफ्ट साइड बोन में होता है. यहाँ पर ओबिसिटी, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, एक्सीडेंट, पुअर पोस्चर्स या स्टैंडिंग प्रॉपरली नहीं होने के कारण, सिटिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण, वॉकिंग या माल न्यूट्रिशन अंडर के कारण भी होता है, यानी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं देने के कारण भी जनरेशन होता है. बेसिकली दिस आर द डिफॉर्मिटीज. आपको कैल्शियम फॉस्फोरस के कारण भी होता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस या एजाइन प्रोसेस अर्लीस्ट आता है, इसके कारण भी होता है. एंड मैनी मोर कॉजेस आर देयर. करेक्टिव मेजर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? प्रॉपर वेट लॉस आपको करना है, वेट BMI स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करना है. पेल्विक रीजन्स में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करने हैं, पुलिंग, पुशिंग, ट्रंकिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज, लेइंग डाउन टाइप ऑफ बैक एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज करने हैं. योगिक आसन जनरेट करें, धनुरासन, हलासन बेसिकली बेनिफिट होते हैं. एंड यूज द ब्रेशेस, वेट रिडक्शन टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमें करना है एंड गुड पोस्टर्स को जनरेट करना है थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस डाइट हमें लेना है, जहाँ पर हमारी बॉडी या BMI स्ट्रक्चर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. एंड जैसे कि लॉर्डोसिस पोजीशन लोअर बैक में होता है, वहाँ पर हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करते हैं. और धनुरासन बेसिकली इफेक्ट होता है, हलासन ऑल्सो इफेक्ट टू जनरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेंथिंग एक्टिविटीज इन लॉर्डोसिस पोजीशंस को हम कम या मिनिमाइज कर सकते हैं. नॉन नेक्स्ट इज स्कॉलियोसिस है. स्कॉलियोसिस मीन्स बेंट होता है, हमारी बॉडी C शेप और S शेप में आती है, कर्वेचर्स जनरेट होता है, साइडवेज कर्वेचर्स होता है. बेसिकली ये ओल्ड एज पर्सनस को हो सकता है एंड C and S शेप भी जनरेट होता है. नाउ व्हाट आर द कॉजेस एंड करेक्टिव मेजर्स आर देयर? व्हाट आर बेसिकली हमारी सेरेब्रल प्लेसी यानी और मसल्स डायस्ट्रोफी बोला गया है, यानी मसल्स डीजनरेशन स्टार्ट होता है. अर्थराइटिस यानी जो जॉइंट्स होते हैं लॉक पोजीशन में रहते हैं. पैरालिसिस होने के चांसेस, यानी हमारी बॉडी एक साइड डाउन हो जाती है. रिकेट्स भी होने के चांसेस होते हैं. अगर आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, सपोज अनहेल्दी इन्वायरमेंट्स है
या स्टैंडिंग या सिटिंग पोस्चर प्रॉपर नहीं होता है, हमारी बॉडी में एनी डिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कारण भी चांसेस हैं कि यहाँ पर स्कॉलियोसिस हो सकता है। और मैनी मोर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बैलेंस डाइट नहीं रहे, आपकी बॉडी आफ्टर 30 के बाद डाइटली एजाइन प्रोसेस में आ रही है, तो चांसेस है कि स्कॉलियोसिस हो सकता है। Now what are the corrective measures are there? Measures are there, use their brushes आपको यूज़ करने हैं। अगर आपको स्कॉलियोसिस होता है, सम टाइम वी कैन गो फॉर सर्जरी में जाना है। और हॉरिजेंटल बार्स में आपको स्विंग्स कर सकते हैं, जहाँ पर सी और एस शेप को कंट्रोल किया जा सकता है। एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जस्ट लाइक अ स्लो पेस ब्रेस्ट वॉकिंग करना है, स्विमिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करना है, जहाँ पर आपके बॉडी को या बॉडी वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। त्रिकोणासन और अर्धमुख आसन भी करते हैं, जहाँ पर स्पाइंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉकनीस होता है। नॉकनीस हमारी बॉडी में लोअर पोजीशन में होता है, लोअर लेग में होते हैं। बेसिकली जनरेट फ्रॉम जेन्यू वेलगम हम इसको बोलते हैं साइंटिफिक्स में। नाउ बेसिकली 3 to 4 इंचेस यानी फीमर बोन और टीबिया पैटेलर जॉइंट्स का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। मिनिमम 3 to 4 इंचेस हमारे पास गैप होना चाहिए। यहाँ पर जो टीबिया आपकी जो फीमर बोन होती है वो इनसाइड आती है और सेम टीबिया एंड फेबुला आउटर जाती है और एंकल जॉइंट इनवर्ट की ओर होते हैं। तो यहाँ पर नॉकनीस की पोजीशन जनरेट होती है। मिनिमम बोथ लेग्स के बीच में यानी बोथ पटेलर जॉइंट्स के बीच में 3 to 4 इंचेस का गैप होना चाहिए। Now what are the causes for the जेनिवेलगम? किसी इंजरीज के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है, रिकेट्स यानी डिजनरेशन ऑफ लोअर बोन्स के कारण यानी लेग्स में होता है, विटामिन डी, फॉस्फोरस, कैल्शियम के कारण, बॉडी में ओबिसिटी यानी बीएमआई स्ट्रक्चर्स नहीं होने के कारण, और या तो जॉइंट्स लॉक हो जाती है उसके कारण भी होता है। Now what are the stress ligaments के स्ट्रेस के कारण भी होता है, पेन इन स्पेशली हिप्स, एंकल जॉइंट्स, और फिट प्रॉपरली वॉकिंग के कारण भी होता है, प्रॉपर स्टांस आप सिटिंग पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन नहीं होने के कारण भी होता है, और अनबैलेंस आपके होने के कारण भी हो सकता है। Now what are the corrective measures? You can go for horse riding. While you are sleeping you can in between आप पिलोस रख सकते हैं ना। पद्मासन गौमुख आसन में बैठ के भी योगा परफॉर्म करके भी कर सकते हैं। प्रॉपर वॉकिंग कैलिपर्स जो कि अर्ली एज में अगर प्रॉपर आप वॉकिंग प्रॉपर होता है इसके कारण भी आप रेक्टिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज हमें करना है, वेट को कंट्रोल करना है, जिससे नॉकनीस प्रॉपर पोजिशन में आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैट फुट है, दैट इज कॉल्ड एज फॉलन आर्च बोलते हैं। कोई फ्लैट फुट ऐसा होता है जहाँ पर जो फुट में आर्च नहीं डेवलप हो रहा है, फ्लैट जो फुट की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अगर हमें चेक करना है तो वाटर में हमें फुट को रखना है और जाके एक नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाना है, तो वहाँ पर वाटर फुटप्रिंट्स में हम चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर प्रिंट टेस्ट हम जनरेट कर सकते हैं। Now what are the causes and corrective measures are there? जेनेटिक फैक्टर्स भी होता है, समटाइम इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। अगर हम टाइट शूज पहने तो चांसेस है कि भी हो सकते हैं, हाई हील्स हम यूज़ कर रहे हैं तो भी हो सकता है, कैरिंग द हैवी वेट्स है, लॉन्ग टाइम हम खड़े हो रहे हैं, या अर्थराइटिस है, या हमारी लेग्स में या लेग्स की पोजीशन में या फुट में रेम्बोइटिस है तो होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, या बॉडी में हम वॉक जो कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, टाइटनेस ऑफ काफ मसल्स के कारण भी होता है। What are the corrective measures? है the proper standing, walking, jumping on the toes हमें करना है, use their marbles हमें करना है जहाँ पर हम मूवमेंट्स कर सकते हैं। Now different type of standing movements, skipping ropes हम यूज़ कर सकते हैं, standing of different type of muscles in the foot हम कर सकते हैं। What is the योगिक आसन हम जा सकते हैं जहाँ पर अधमुख आसन से हम शवासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, वज्रासन एंड मेनी टाइप ऑफ थेरेपेटिक मॉडलिटीज यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम उस आर्च को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर वेयरिंग ऑफ शूज़ हम होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर वेट का बैलेंस हमें करना है, बीएमआई स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करना है। ना लास्ट इस बो लेग्स से जेनुवेरम्स होते हैं बोनो नीस में, यानी आपके पटेलर जॉइंट्स का जो गैप होता है 3 to 4 इंचेस से ज़्यादा हो जाता है ना। यहाँ पर क्या होगा, फीमर जॉइंट्स बाहर की ओर जाएंगे, टीबिया और फेबुला अंदर की ओर आएंगे और एंकल बाहर की ओर जाएगा, यानी जो मूवमेंट्स होता है वो पिजन शेप्स का हो जाता है, यानी बो टाइप से दिखने लगता है बिटवीन देयर बोथ दी नीज। Now what are the causes and corrective measures are there? लैक ऑफ विटामिन डी होता है, फॉस्फोरस कैल्शियम की कमी के कारण होता है, डिस्कम्फर्ट हमारी पोजीशंस होती हैं, चाइल्ड्स 3 to 4 ईयर्स में अर्ली वॉक करने लगते हैं, क्रॉल्स करने लगते हैं या रन फास्टेस्ट करने लगते हैं, इसके कारण भी होता है। ब्रशेस हमें यूज़ करना चाहिए, मॉडिफाइड शूज़ हमें करना चाहिए, बीएमआई स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करना चाहिए, वॉकिंग प्रॉपर एज में हमें करना है, फुट में प्रॉपर हमें यूज़ करना है। बीएमआई स्ट्रक्चर्स को अगर आप कंट्रोल करोगे यानी वेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो चांसेस है कि बो लेग्स की पोजीशन को हम कम कर सकते हैं। Now what are the references, resources which I was taken in there is basically curriculum मैंने सेम से लिया हुआ है 2020-24 से, हैंड बुक्स मैंने फॉलो किया है जो सीबीएसई की बुक्स हैं। थैंक यू।